In this video, we will derive the equations of motion by graphical method. इस वीडियो में हम equations of motion को derive करेंगे by graphical method. We have three equations of motion. First equation of motion, v is equals to u plus at. Also, it is known as velocity time relation. Second equation of motion, s is equals to ut plus half at square, and you can say distance time relation. Third equation of motion, v square minus u square is equals to 2as, velocity distance relation. Now we will discuss these three equations of motion one by graphical method. Consider a velocity time graph of a body. Let the body has an initial velocity u at a point A, and after time t its final velocity b becomes v. मान लीजिए एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u. देखिए ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने लिया है. इनिशियली मैंने बॉडी की जो वेलोसिटी मानी है वो क्या है u. आफ्टर टाइम t, दिस इज t टाइम. आफ्टर दिस t टाइम द वेलोसिटी, और यू कैन से दैट फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, where OA, this OA, see this OA is equals to u and this BC is equals to V. ये BC फाइनल वेलोसिटी क्या होगी है BC. The time t is represented by OC. देखिए यहां पर ये टाइम t को रिप्रेजेंट कर रही है OC. ये जो लाइन है OC ये टाइम t को रिप्रेजेंट कर रही है. To complete the figure, draw a perpendicular CB from point C. हमने इस फिगर को कंप्लीट करना है. इस C पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम मैंने दे दिया CB. CB परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट C एंड ड्रॉ AD पैरेलल टू OC. और एक AD जो ड्रॉ कर दिया जो किसके पैरेलल है OC के. And draw AD parallel to OC. B is perpendicular from point B to OE. B क्या है? perpendicular है from point B to OE. From point B to OE. Here it is BE. BE is perpendicular. BE is perpendicular from point B to OE. So OA is equals to U, equation number first, and this is the initial velocity of body. BC is equals to V, equation number 2, final velocity of the body. Also from graph we can see that इस ग्राफ से देखिए this BC, you can see this BC is equals to this BD, BD plus DC. BC is equals to BD plus DC, equation number third, and we know that BC क्या है? final velocity, and final velocity is equals to V. So V is equals to, हमने क्या किया इस इक्वेशन नंबर थर्ड में BC की वैल्यू पुट कर दी तो V is equals to BD plus DC and DC is equals to OA. देखिए ये जो DC है और ये OA है आपस में इक्वल हैं. So if OA is equals to U, then what is the value of DC? It is also equals to U. तो ये किसके इक्वल होगी? U के इक्वल होगी. From equation number first, OA is equals to U, we get V is equals to BD plus U. OA की वैल्यू यहां पर मैंने पुट कर दी. Now we have to find the value of BD. अब हमें इस BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखिए we know that the slope of velocity time graph gives us acceleration A. देखिए इस वेलोसिटी टाइम की जो ग्राफ की जो स्लोप है AB की जो स्लोप है वो हमें क्या देगी? एक्सेलरेशन देगी. सो एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB. एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB. And we know that how we can calculate slope?
perpendicular upon base. Perpendicular upon base. So perpendicular is BD. See this triangle. See this triangle ABD. ABD. इस ट्रायंगल में देखिए perpendicular upon base. BD is perpendicular and base is AD. So acceleration is equals to slope, it means BD upon AD, equation number 5. And we know that AD is parallel and equal to OC and the value of OC is equals to T. वैल्यू क्या है OC की T, और अगर OC और AD इक्वल है तो AD की वैल्यू भी क्या होगी T. सो पुटिंग T इन प्लेस ऑफ AD, तो हमने क्या करना है इक्वेशन नंबर 5 के अंदर AD की जगह पे T पुट कर देना है, AD की वैल्यू को पुट कर देना है. सो वी विल गेट BD इज इक्वल्स टू AT. A इज इक्वल्स टू BD अपॉन T. इस T की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कहां A के साथ, देन वी विल गेट BD इज इक्वल्स टू AT. इक्वेशन नंबर 6. Putting the value of BD is equals to AT in equation number 4. What is equation number 4? See, this is equation number 4. V is equals to BD plus U. इस इक्वेशन के अंदर हमने इस BD की वैल्यू को पुट कर देना है. So BD is equals to AT. So V is equals to BD की जगह AT पुट किया plus U. So this is our required first equation of motion by graphical method. Next to derive second equation of motion, और इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम है डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप. डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप. देखिए सेम ग्राफ से ही हम इसको ड्राइव करेंगे. मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसीडर किया जिसके अंदर OA मेरी इनिशियल वेलोसिटी है जो किसके इक्वल है U के, BC मेरी फाइनल वेलोसिटी है जो किसके इक्वल है V के. किसके इक्वल है V के. और OA और ये DC इक्वल हैं. अगर OA की वैल्यू U है तो DC की वैल्यू भी क्या होगी U होगी. और देखिए ग्राफ से BC किसके इक्वल है, BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC. BD प्लस DC. सो BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC. V की वैल्यू, BC की वैल्यू है V, BD हमें कैलकुलेट करना है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DC? इट इज U. It is U. So again we have to calculate the value of BD. BD की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? By the slope of this graph or straight line AB. And we know that slope is equals to this perpendicular upon base. Base क्या है? AD. और यही स्लोप किसके इक्वल होती है? एक्सेलरेशन के. तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू, दिस इज नॉट AB, दिस इज AD. A और AD की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल है? T के. क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ BD. तो BD की वैल्यू आ जाएगी AT. तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्सेलरेशन. अगेन देखिए, अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिगर OABC. OABC, OABC, एरिया ऑफ दिस फिगर. सो ये मुझे इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर मुझे दो फिगर्स दिखाई दे रही हैं. एक तो ये मुझे रेक्टेंगल दिखाई दे रही है और एक ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है. मींस अगर मुझे टोटल एरिया कैलकुलेट करना है तो मुझे सेपरेट अलग अलग इन दोनों फिगर्स का एरिया कैलकुलेट करना होगा. तो देखिए, एरिया ऑफ OABC किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. रेक्टेंगल है OADC और ट्रायंगल क्या है? ABD. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. व्हाट इज द लेंथ? OA इंटू ब्रेड्थ OC. OA इंटू OC, you will get area of rectangle. And what is the formula for calculating area of triangle? Half of base into height. What is base? AD. AD is base and BD is height. Half into AD into BD. What is the value of OA? OA की वैल्यू है U and OC की वैल्यू है T.
प्लस हाफ ऑफ टी इंटू ए टी। डी टी की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है हमने, कितनी आई थी, ए इंटू टी, ए इंटू, अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई दिस u इंटू टी, ओ ए की वैल्यू u पुट कर दी, ओ सी की t पुट कर दी, u इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी विल ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, v square is equals to u square plus 2as। this is also known as velocity distance relationship। देखिए, here to calculate distance we have to calculate area of trapezium OABC। देखिए यहां पर आपको एक ट्रेपेजियम दिख रही है OABC, तो हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करना है। सो जब हम इस ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें बॉडी द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो देखिए इस फिगर में पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, OA एंड BC आर पैरेलल साइड्स, सो 1/2 इंटू OA प्लस BC इंटू हाइट, व्हाट इज हाइट, OC इज द हाइट। वी नो दैट OA इज इक्वल्स टू U एंड BC इज इक्वल्स टू V। OA क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, BC क्या है, फाइनल वेलोसिटी, एंड वी नो दैट OC इज इक्वल्स टू टाइम t। So put these all values in this equation, you will get 1/2 into u plus v into t। अब हमें इस t को eliminate करना है। Now eliminate t from equation number first। So we know that from first equation of motion v is equals to u plus at, we get the value of t, t is equals to v minus u upon a। Equation number 2, put the value of this equation 2 in equation number 1, you will get s is equals to u plus v divided by 2 into time। now this is the equation number first। तो अब t की वैल्यू उठाइए, 2 की, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू उठाइए और इस t की जगह पे पुट कर दीजिए, मतलब t की वैल्यू पुट करनी है हमें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, v minus u upon a। नाउ मल्टीप्लाई दिस v एंड u, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब आप इस u से v की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा uv, इस u से इस u की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ u स्क्वायर, प्लस ऑफ v एंड प्लस ऑफ v you will get प्लस v स्क्वायर, प्लस ऑफ v माइनस ऑफ u you will get माइनस ऑफ uv। 2 into a 2a, तो आपको मिला uv माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस uv। देखिए यहां पर ये vu और यू कैन से uv, ये जो vu है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो आपस में एक दूसरे को कट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज अपॉन 2a। अब हमें क्या करना है, इस 2a की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, हमें मिलेगा 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बाय रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। Next, we will discuss uniform circular motion। Uniform circular motion, when a body moves in a circle, when a body moves in a circle, moves in a circle, it is called circular motion। It is called circular motion। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने से पहले हम कुछ एक एग्जांपल को लेंगे। सपोज एक ट्रैक है जिसकी 4 साइड हैं, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। एक एथलीट रन कर रहा है इस ट्रैक पे, तो देखिए जब वो ए से बी जाएगा तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन जब वो बी से सी जाएगा तो उसे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे ही सी से डी पे भी उसे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी और डी से ए भी उसे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो उसको कितनी बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी, 4 बार, 4 टाइम्स उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। सपोज यही एथलीट किस ट्रैक पे भाग रहा है, सपोज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल एक ऐसी शेप होती है जिसकी 6 साइड होती हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो इस पर्टिकुलर फिगर में
इस पर्टिकुलर ट्रैक पे जब एथलीट रन करेगा तो पहले वो ए से बी जाएगा, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ और एफ से ए। अब देखिए उसको कितने बार डायरेक्शन को चेंज करना पड़ा, 6 बार। अब सपोज कीजिए कि वो एथलीट एक ओक्टागन ट्रैक पे दौड़ लगा रहा है, रेस लगा रहा है। सपोज एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ ट्रैक शेप्ड ओक्टागन। तो ये क्या होगा, देखो पहले वो ए से बी जाएगा, फिर बी से सी जाएगा, फिर सी से डी जाएगा, फिर डी से ई से एफ, एफ से जी, जी से एच। अब उसको कितनी बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार। कितनी बार, 8 बार। ठीक है। अब देखिए जब वो एक सर्कुलर ट्रैक पे भागेगा तो द शेप ऑफ ट्रैक बिकम्स अ सर्कल और इट बिकम्स अ सर्कुलर ट्रैक। अब हमें पता है कि सर्कल बहुत सारी छोटी छोटी साइड से मिलके बना होता है। एंड व्हेन द एथलीट रन्स अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक देन इट्स हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली। होगा क्या, हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स, बिकॉज सर्कल जो होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बना होता है। सो व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली। तो जब भी कभी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी जो डायरेक्शन है मोशन की वो कंटिन्यूसली चेंज होती है। कंटिन्यूसली क्या होती है, चेंज होती है। Since the velocity changes due to continuous change in direction, therefore the motion along a circular path is said to be accelerated. So जो motion होता है along a circular path वो क्या होता है, accelerated motion होता है। When a body moves in a circular path with uniform speed, you can say constant speed, its motion is called uniform circular motion. तो यही है डेफिनेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। When a body moves in a circular path with uniform speed, or you can say that constant speed, its motion is called uniform circular motion. The motion in a circle with constant speed is an example of accelerated motion. ध्यान से सुनिएगा, the motion in a circle with constant speed is an example of accelerated motion. अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, अराउंड द अर्थ वो क्या लेते हैं, सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही लेते हैं। नेक्स्ट, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ये भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ का मोशन अराउंड द सन, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। अभी हम करके आए मोशन ऑफ एन एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, वो भी क्या है, रनिंग ऑफ एन एथलीट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। और एग्जांपल क्या हो सकता है, द टिप ऑफ अ सेकंड हैंड ऑफ वॉच एग्जिबिट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो हमारी घड़ी होती है, जो वॉच होती है, उसके अंदर जो सेकंड वाला हैंड होता है, सेकंड वाली जो सुई होती है, वो भी हमारे को क्या देती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर, हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक सर्कल के अंदर, इस ए पॉइंट से वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है और मान लीजिए कि आफ्टर टाइम टी वो वापस ए पे आ गया, तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा जो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। सो 2 पाई आर, सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर अपॉन टाइम। तो वी कैन कैलकुलेट, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। अब यहां पर कुछ नहीं करना, आर की वैल्यू आपको गिवन होगी, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 और 3.14, और टाइम की वैल्यू आपको गिवन होगी। जस्ट पुट these value in this equation, you will get speed. So that's all in this chapter. Thank you.